morning and welcome to your own channel Edu Bharat Expert. Now today I am here with the continuation of the series How Seekhe Python. Now today's topic is bare bones of Python programming. Now question arises, what is bare bones? What is Python programming of bare bones? That is, bare bones is the structure of Python programming. स्ट्रक्चर मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, कैसे हम पाइथन प्रोग्राम को लिखते हैं, क्या फर्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए, वो सब आपका सीखेंगे हम बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम. सो विदाउट डिले वी स्टार्ट अवर lesson here today. So the first is Python bare bones. इन पाइथन बेयर बोन्स दैट इज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग आपके आते हैं एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, कमेंट, फंक्शन एंड ब्लॉक एंड इंडेंटेशन. सो हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं एक्सप्रेशन से. व्हाट इज एक्सप्रेशन? इट इज अ लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड. वेरिएबल आप पढ़ चुके हैं पहले. वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल इज अ कंटेनर जिसमें हम कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. कांस्टेंट इज द फिक्स्ड. For example, a is equal to 5. A is a variable and 5 is a constant value where I have stored in the variable a. Okay. So here we start different type of expression. Constant expression, math expression, integral expressions, floating expressions, relational, logical, bitwise and combinational expression. जिससे most common we have to use that is arithmetic expression. अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में a प्लस बी, a माइनस बी. आप यहाँ ध्यान देंगे a प्लस स्मॉल b लिखा हुआ है मैंने, बिकॉज पाइथन इज केस सेंसिटिव, सो बोथ हैव डिफरेंट वैल्यू, b and a capital B and the small b. So let me check how can we use this expression. Suppose we write s is equal to 4 and we write p is equal to 7. So 4 will be stored in S and 7 will be stored in P, and if I write M is equal to S plus P, this variable I have taken. So आप देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है. We do the M, so we can see the result 7 plus 4 is equal to 11. So 11 is the result. So this is the one kind of expression. Even we can write directly, we can write literal or constant. I am telling you 4 multiply 6, you can see the result. Or we can write C, already I have taken, no, C is equal to, we can write 8 multiply 7, and if I write C, then we can see the result of it. Okay, so this is what, this is an expression. For example, F is equal to S plus P, C is equal to 8 multiply 7, or we can write Y is equal to 9 multiply, I can write S, then we print Y, so the result is, even we can use 3.4 or 5 minus 1, you can see the result. This is also an expression. So I hope you understood what is an expression. So any mathematical expression we write or we use in Python, this is called an expression, because I have taken the example mathematical expression. Okay, so the next one is, so expression I have given the legal combination of operand. Now what is operand? A and B are the operand and plus is the operator. Operator आपके हो सकते हैं addition, subtraction, multiplication, division, modulo division and integer division. And these are the expression example. The next one is, what are the other bare bones of the Python? That is statement, comments, functions, block and indentation. Statements क्या होती है? Statement, this is just instruction to give Python. Statements are a very simple instruction. मतलब जो भी आप लिखते हैं Python में, this is an instruction. जो भी आप कमांड देते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, सुबह अगर आप असेंबली में जा रहे हैं और आपकी कमांड होती है ऑल द स्टूडेंट्स कम टू द असेंबली ग्राउंड, दिस इज अ सिंपल इंस्ट्रक्शन है. ठीक है, सिंपल कमांड आपको दी जाती है अगर कि गो टू योर क्लासरूम. ठीक है, और एक टाइम टेबल जो आपका बनता है, दिस इज अ प्रोग्राम कि यू नो वेरी वेल कि मंडे को आपके ये पीरियड है, ट्यूसडे ये है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना सेट करते हैं बुक्स या बैग. ठीक है, लेकिन स्मॉल इंस्ट्रक्शन जब हम देते हैं, वो स्मॉल इंस्ट्रक्शन से यूज करके ही आपका प्रोग्राम बनता है. तो यहाँ पे हम स्मॉल इंस्ट्रक्शन मीन्स स्टेटमेंट. सो डिफरेंट स्टेटमेंट जब हम टुगेदर करेंगे उनको एक प्रोग्राम में मीनिंगफुल उसमें, तो वो आपका बन जाएगा प्रोग्राम.
समझ में आया स्टेटमेंट क्या है? तो स्टेटमेंट्स इज आर द इंस्ट्रक्शन टू गिव पाइथन. ओके, सो वी स्टार्ट. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट? तो इसके पहले हम बता दिए स्टेटमेंट, कमेंट्स, फंक्शन एंड ब्लॉक. स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया इंस्ट्रक्शंस है. कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स जो आपके होते हैं दैट इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेटमेंट. आपने जो स्टेटमेंट लिखी आप उसके अलग से एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट है, क्या कर रही है, वो आप लिख सकते हैं कमेंट्स में, क्योंकि ये पार्ट आपका इग्नोर होता है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. तो जो आपका इंटरप्रेटर है वो इसको चेक नहीं करता है, इसको इग्नोर करता है. तो आपने देखा होगा जब आप कुछ स्टेटमेंट गलत लिखते हैं तो आपको हेल्प आती, हिंट आती कि ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, सिंटैक्स एरर है, ठीक है, या रूल को, जो पाइथन के रूल्स है उसको वायोलेट कर रहा है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, तभी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. तो कमेंट आपका जो होता है वो आप में, उसमें आप कुछ गलत भी लिखते हैं स्पेलिंग, हैश साइन डाल के, हैशटैग डाल के, तो वो गलत नहीं माना जाता. ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है फंक्शन. फंक्शन इटसेल्फ इज अ स्मॉल प्रोग्राम. इनबिल्ट फंक्शन होते हैं इसमें और आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, अभी हम फर्दर पढ़ेंगे. नेक्स्ट आपका ब्लॉक एंड इंडेंटेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द पाइथन प्रोग्रामिंग. सो ब्लॉक एंड इंडेंटेशन. ठीक है, ब्लॉक क्या है? पीस ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट एज अ यूनिट दैट इज गिवन इन द डेफिनेशन. सो एक्चुअली ब्लॉक जो होता है वो प्रोग्राम की जो लाइन है, जो स्टेटमेंट है, मतलब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट वी कैन से, ठीक है, जो एज अ यूनिट आपका एग्जीक्यूट होगा. फॉर एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल में समझ के आते हैं. अगर मैंने एक एक एप्पल अगर अलग अलग गिने, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4, इस तरह से गिना, जब वो 12 हो जाते हैं तो आप उसको क्या बोलोगे? 12 एप्पल, और यू कैन से 1 डजन. ठीक है, सो वो एक यूनिट बन गया ना, डजन में आपके 12 थिंग्स हो रहा है. द सेम इज डिफरेंट, 1 बाय 1 स्टेटमेंट जो होगी वो मिलके आपका बन जाती है ब्लॉक. ठीक है, तो फिर इंडेंटेशन क्या है? ब्लॉक एंड इंडेंटेशन. ठीक है, इंडेंटेशन इज नथिंग, एक्चुअली इट इज अ स्पेस गिवन फॉर रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंड द प्रोग्राम. ठीक है, वो हम आगे यूज करेंगे. मैंने ब्लॉक के साथ क्यों यूज किया इंडेंटेशन, वो आपको आगे पता चलेगा अभी. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट अभी मैंने आपको बताया इंस्ट्रक्शन, सिंपल, मल्टीलाइन और कंपाउंड. सिंपल स्टेटमेंट हमारी क्या होती है? जैसे असाइनमेंट जो भी मैंने आपको बताया, a इज इक्वल टू 20, दैट इज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट. और कौन सी स्टेटमेंट है? असाइनमेंट स्टेटमेंट है. क्या किया मैंने? 20 को a में स्टोर किया है. ठीक है, उसके बाद हम इसमें यूज करते हैं पास, इंपोर्ट, रिटर्न और डेल. और भी स्टेटमेंट है जिसे मैंने कुछ का एग्जांपल आपको दिया है. ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट हम आगे जब पढ़ेंगे पांडास में उसमें यूज होते हैं, और फाइल हम यूज करते हैं. रिटर्न स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे, और डेल, जिसमें मैं आपको दो बताऊंगी, असाइनमेंट और डेल हम कैसे यूज करते हैं. तो वो स्टेटमेंट हम करेंगे. उसके बाद हमारे आते हैं यहाँ पे मल्टी लाइन स्टेटमेंट, जिसमें सिंगल लाइन, ये जिसमें हम मल्टीपल वेरिएबल में मल्टी वैल्यू स्टोर करते हैं इन अ सिंगल लाइन. और दूसरी मैंने बताया आपको इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का ये टाइप है मल्टीपल लाइन का. इम्प्लिसिट मतलब आपने जैसे उसमें पैरेंथेसिस हुआ, इम्प्लिसिट ये आपका है कि ये अंडरस्टूड है कि ये आपकी एक होल स्टेटमेंट है. या आप कह सकते हैं 1+2 एक स्टेटमेंट हुई, फिर 3+2 एक, और ये तो ये क्या कर दिया उसको, मल्टी लाइन स्टेटमेंट को ये पूरा एक में किया. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया डजन का. यहाँ पे हम स्लैश यूज करेंगे ईच लाइन की एंडिंग में, जो न्यू कलेक्टर, जैसे माइस्क्यूएल हमने पढ़ा था. माइस्क्यूएल में क्या होता था, हम सेमीकोलन लगाते थे टर्मिनेटर के लिए. ठीक है, कमांड या स्टेटमेंट टर्मिनेटर. पाइथन में क्या होता है? न्यू लाइन. ठीक है, पाइथन में जब हम रिटर्न कर देंगे तो वो 1 स्टेटमेंट मानी जाएगी. तो यहाँ पे हम रिटर्न प्रेस करने के पहले स्लैश लगा देंगे, दैट इज ये न्यू लाइन की जगह, फिर स्लैश, ये स्लैश है. ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने क्या, इसको एडिशन प्रिंट करा. तो ये प्रोग्राम किस तरह से रन होता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ. तो यहाँ पे हमने पाइथन स्टार्ट किया, सिंगल लाइन का मैंने अभी आपको बताया उसमें. ठीक है, a इज इक्वल टू बी. अब मैं इसको एक में करके बताती हूँ. a इज इक्वल टू 4, यहाँ पे हम लगाएंगे सेमीकोलन, क्योंकि मैं नेक्स्ट यूज कर रही हूँ. b इज इक्वल टू 7, फिर सेमीकोलन, c इज इक्वल टू 10. सो a b c तीन वेरिएबल हैं जिसमें तीन डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, बट दिस विल बी इन वन लाइन, सिंगल लाइन. ये देखिए, अब मैं अगर प्रिंट करूंगी a, 4 will print. If I do b will value will print. And if I do c, तो c की वैल्यू प्रिंट होगी. अगर मैं इसको सिंगल लाइन स्टेटमेंट कहूंगी तो मैं लिख सकती हूँ t इज इक्वल टू, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई कैन राइट पाइथन.
टी में मैंने पाइथन स्टोर किया, मैंने टी को प्रिंट कराया, तो दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम यूज करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ये मैंने अभी आपको क्या बताया, स्लैश का साइन यूज करके हम कर सकते हैं। दिस इज एक्सप्लिसिटली, दैट मीन्स एक्सप्लिसिटली वी हैव टू यूज अ डिफरेंट साइन, दैट इज स्लैश। ठीक है, सो 1 + 2 + इसको हम रन करते हैं, यू सी द रिजल्ट, तो आपका रिजल्ट देखिए 28 आ रहा है। ठीक है, अनदर वी कैन यूज इट, देखिए पैरेंथेसिस यूज है, दिस इज इम्प्लिसिट। ओके, देन वी रन इट, तो आप देखेंगे आंसर इज सेम। ठीक है, दोनों का आंसर सेम है, एक में हमने पैरेंथेसिस का यूज किया और एक में हमने स्लैश का यूज किया, और उसके पहले सेमीकोलन, अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है सिंगल लाइन में। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा ये क्लियर हो गया आपको, सिंगल लाइन में आपको बताया मैंने, मल्टीपल में बताया आपको इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट में हम पैरेंथेसिस और एक्सप्लिसिट में स्लैश का साइन यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट में आपके इफ, फॉर और वाइल आते हैं। इफ स्टेटमेंट, फॉर एंड वाइल स्टेटमेंट, ये लूपिंग में एक्चुअली यूज होते हैं। अब इनके हम प्रोग्रामिंग आपको आगे बता देते हैं किस तरह से करेंगे, तो वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ आपका ऑलरेडी बनाया हुआ है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये हमारा इफ कंडीशन में देखिए ए, यहाँ पे मैंने इंटीजर वैल्यू डिफाइन की है, इनपुट स्टेटमेंट यूज की है, गिव अ नंबर, अनदर इनपुट स्टेटमेंट मैंने यूज की है गिव अनदर नंबर के लिए, इफ ए ग्रेटर देन बी, ये आपका एक्चुअली ब्लॉक भी होता है, ये ब्लॉक में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट इफ ए ग्रेटर, और ये देखिए इंडेंटेशन, जैसे हम इसको लिखते हैं तो ये पी देखो प्रिंट यहाँ पर आ रहा है, इफ के नीचे एल से, और ये दिस इज इंडेंटेशन भी है। ठीक है, तो वो अभी हम आगे भी करेंगे, बट यहाँ पे आप ध्यान रखिए क्या है, जैसे हम इसको रन करते हैं, देखिए गिव अ नंबर लिखा, मैंने लिखा 5। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दिया 7, तो आपका हाईएस्ट नंबर 7 प्रिंट होगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, सेकंड में आपका फर्स्ट में पहले 5 और 7 दिया था, अब मैं दे रही हूँ 7 एंड 5, तो दोनों में आपका नंबर हाईएस्ट प्रिंट होगा, पोजीशन आपकी, क्यों, क्योंकि मैंने एल्स पार्ट लिया। देखिए इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर 5 ग्रेटर देन 7 है तो क्या होगा, प्रिंट ए, बट ऐसा तो नहीं है, फॉल्स है, तो ये नेक्स्ट में जाएगा, तो 7 प्रिंट होगा। अगर मैं देती 7, ए इज इक्वल टू 7, तो 7 ग्रेटर देन 5, यस, तो प्रिंट ए, और ए की वैल्यू क्या है, 7 विल बी प्रिंट। सो इन बोथ द कंडीशन आप लिखेंगे तो प्रिंट तो हाईएस्ट वैल्यू होगी, लेकिन पहला है कि ट्रू पार्ट से होगी या फिर एल्स फॉल्स, तो पहला पार्ट ऑलवेज ट्रू लिखा जाता है जब भी हम इफ कंडीशन लगाते हैं, जो हम फर्दर बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर। ठीक है, फॉर और वाइल का कैसे हम यूज करेंगे, तो फॉर के लिए हमारा आता है इसमें, ये रहा हमारा फॉर लूप, फॉर आई, दिस इज द रेंज फंक्शन है ये। ठीक है, फॉर, ये देखो आपका फॉर जो है ये रिजर्व वर्ड में आते हैं, इसको वी कैन नॉट टेक एज अ वेरिएबल। ठीक है, तो फॉर आई इन, पाइथन में देखिए आपको क्लियर हो जाता है, अलग अलग कलरफुल जो आते हैं, फॉर आई इन रेंज, दिस इज स्टार्टिंग नंबर, एंडिंग नंबर 11, और गैप है, ये है आपका स्टेप, मतलब 1 से 11 तक, 11 नहीं लेता है क्योंकि n-1 लेता है, और n की वैल्यू मैंने 11 दी है, तो n-1 कितना हुआ, 10। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखती 20 तो कितना होता, 19, क्योंकि ये जो एंड वैल्यू वो n-1 लेता है, जो भी नंबर होगा उससे -1 कम लेगा। और 2 क्या है, 2 का डिफरेंस है, तो 1 के बाद 2 का डिफरेंस क्या वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, 3, 3 के बाद 7, जब रन करके देख लेते हैं क्या आता है, तो देखिए 1 आया, 3, 5, 7, 9, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 2 का हुआ, स्टार्टिंग नंबर 1 था, लास्ट में हमने क्या लिखा था 11, तो 9 के बाद तो 11 ही होता है, 11 नहीं लेगा, वाई, क्योंकि मैंने बोला आपको n-1 लेता है। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट हम इसी में लेते हैं आगे वाइल लूप का। वाइल लूप में हमारा लेते हैं, दिस वन इज वाइल लूप। देखिए इसमें भी सेम 2 नंबर प्रिंट करा है। ठीक है, इजीली समझ आने के लिए एग्जाम्पल लिए। अब हमें इसमें क्या करना है, वाइल ए ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू, कब तक क्या करना, ए की वैल्यू बी से बड़ी तो प्रिंट ए है। ठीक है, और मैंने कोई इंक्रीमेंट आगे नहीं दिया। अब देखिए क्या रन करते हैं हम इसको, रन मॉड्यूल, मैंने नेम नंबर दिया
7, ठीक है, और यहाँ दे रही हूँ मैं 5, मतलब a की वैल्यू b से ग्रेटर देन है। तो क्या हो रहा है आपका कंटिन्यूशन में 7 7 7 7 7 प्रिंट हो रहा है, इनफाइनाइट लूप चल रहा है। वाई? द कंडीशन आपकी ट्रू है, तो मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अब अगर मैं देती हूँ कंडीशन दूसरी, मतलब ये फॉल्स पार्ट, तो ए मेरे को स्मॉल देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या दिया, 7 5 दिया, तो अब मैं देती हूँ 5 और फिर देती हूँ 7, तो देखिए आपका 7 प्रिंट होगा। सो अगर ए पार्ट बड़ा है तो आपका लूपिंग किस में जा रहा है, वो कंटिन्यूशन में, ठीक है, इनफाइनाइट चल रहा है। क्यों? बिकॉज वो हमने कंडीशन क्या दी है, वाइल ए ग्रेटर, जब तक ए बी से बड़ा होता है तब तक प्रिंट है, और ए तो हमने दिया था 7 नंबर, तो 7 बी से ऑलवेज बड़ा है, क्योंकि मैंने कोई आगे स्टेटमेंट नहीं दी है। तो आपका ये होता है प्रिंट ए एल्स प्रिंट बी, ठीक है। ये भी लूप, ये भी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, इसको किस तरह से ब्रेक कंटिन्यू वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा आता है, पर हमें ये क्लियर होना चाहिए, अभी बेसिक है, ठीक है, एडवांस बाद में। तो नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें दो स्टेटमेंट यहाँ क्लियर हो गई आपकी, इफ, फॉर और वाइल लूप। तो फॉर और वाइल लूप में आते हैं, दैट इज रिपीटेशन टास्क में, और इफ आपका जो है स्टेटमेंट ब्रांचिंग में आता है, डिटेल पढ़ना है, ठीक है। कंपाउंड स्टेटमेंट है, और ये तीनों कंपाउंड स्टेटमेंट का पार्ट्स है, बिकॉज जो भी हम लिखते हैं पाइथन में वो स्टेटमेंट्स है, ठीक है। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर है ना, डिटेल हम बाद में क्लासीफाई करेंगे क्या है। फिर आपका है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, मैंने बताया आपको, कमेंट्स आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेटमेंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन कैसे, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे हैश, आपने क्या प्रोग्राम करना है, एडिशन ऑफ 2 नंबर, तो आप सबसे पहले लिखते हैं हैश टैग राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर, तो ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया, ठीक है। और वी कैन से सेपरेट लाइन कमेंट। इसी में हम अगर लिखते हैं, मैंने लिखा x इक्वल टू 5 और वहीं पे लगा दिया हैश दिस इज द x टू स्टोर 5 इन इट, तो ये हो गया इन लाइन कमेंट, ठीक है, जिसमें आप उसको फर्दर उस लाइन को क्लैरिफाई कर रहे हो कि वो क्या है लाइन, तो ये कहलाता है आपका इन लाइन कमेंट। तो मल्टी लाइन कमेंट क्या है, मल्टी लाइन कमेंट में हम दो साइन यूज करते हैं, एक तो आप एपोस्ट्रॉफी 3 बार या सिंगल कोट्स कह सकते हैं, और डबल कोट्स यूज कर सकते हैं, इसमें 3 बार लिखने यूज करना है, आइदर सिंगल और डबल कोट्स। तो इसको हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं किस तरह से यूज करते हैं। तो ये रहा एग्जाम्पल में हमारा, ये वाइल लूप का हमारा हो चुका था। अब हम करते हैं दूसरा। ये देखिए कमेंट में आपका, ठीक है, कमेंट में हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए। अब इसको मैं रन करती हूँ, तो रन मॉड्यूल में आपका ये, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सिंगल की जगह डबल कोट्स भी दे सकती हूँ, और आई कैन गिव इट हियर डबल कोट्स। आप इसका रिजल्ट देखिए, रन मॉड्यूल, देखिए आपका आ गया। तो ये है सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टीपल लाइन कमेंट्स, ठीक है। अच्छा, आप सिंगल लाइन में आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं, इसको हैश करके भी मैं यूज कर सकती थी। हियर हैश कहाँ गया, ये हैश यहाँ भी लगा दो, फिर यहाँ भी हैश लगाओ, इस तरह से भी आप दे सकते हैं, बट सिंपल आपका वे है कि आप उस तरह से यूज करें, ठीक है। अब देखिए आपका एरर, ठीक है। तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं, हैश आपको एवरी लाइन में हैश लिखना पड़ेगा, या आप सिंगल कोट्स लगाइए, या आप डबल कोट्स, लेकिन 3 लगाने हैं, ठीक है। तो इसमें कमेंट्स में एक और होता है, ये देखिए कमेंट्स में, अगर मैंने यहाँ पे दिया कमेंट्स में, नहीं ए इक्वल टू, अगर मैं स्ट्रिंग में दे रही हूँ ना कैरेज रिटर्न आपको बताने के, तो इसकी लेंथ बताने के लिए, बट ये आई विल डू फर्दर। अगर मैंने ए इक्वल टू ट्रिपल कोट्स लिया और ये 1 2 3, ठीक है, मैंने कोई भी स्ट्रिंग में दे रखा है, अब मैं इसकी लेंथ देख रही हूँ, देखिए क्या डिफरेंस है, कितना आया, 5 आया, कैसे आया, देखिए 1 2 3, तो ये तो 3 आना चाहिए था, 5 क्यों आया, तो ये क्या लेता है, इसको भी काउंट करता है, इसको रिटर्न की को 1 2, ठीक है, तो 1 2 3 और ये 4 और
5 हो गया, ठीक है। तो स्पेस में आपका वो काउंट होता है, ठीक है। आगे इसको क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी। सो ये हमारा हो गया कमेंट्स का, ठीक है। अभी आप इसमें ध्यान दीजिए कमेंट्स में, ठीक है। तो सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टीपल लाइन कमेंट, इसी में हमारा आता है फंक्शन। फंक्शन मैंने क्या बताया, व्हाट इज फंक्शन? तो फंक्शन जो है इट्सेल्फ अ स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम है। स्मॉल प्रोग्राम कैसे, मतलब फंक्शन के अंदर हम फंक्शन, जैसे मैंने आपको बताया प्रिंट स्टेट, प्रिंट जो है फंक्शन है आपका, ठीक है। पहले ही आपका जो पाइथन 2 में थे तो इसको एक स्टेटमेंट ही लेते थे। फंक्शन क्यों है ये प्रिंट फंक्शन है, क्योंकि यहाँ इनबिल्ट प्रोग्राम लिखा है, उसको पता है आपको जैसे ही प्रिंट लिखते हो दैट मीन्स आप पाइथन को कमांड देते हो कि कोई चीज़ आपको आउटपुट मतलब प्रिंट कराना है, तो आउटपुट स्टेटमेंट है ये। आउटपुट स्टेटमेंट और प्रिंट फंक्शन है, ठीक है। सो इनबिल्ट फंक्शन एंड यूजर डिफाइन। इनबिल्ट फंक्शन में मैंने रेंज फंक्शन भी आपको बताया, और यूजर डिफाइंड फंक्शन, दिस इज डिफाइंड बाय द यूजर, डीईएफ से हम डिफाइन करते हैं इसको, ठीक है। और कोई भी स्मॉल जो भी कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं उसको विद इन फंक्शन में हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट को, ठीक है। तो ये भी अलग से हम करेंगे, अभी आगे हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट हमारा है ब्लॉक एंड इंडेंटेशन। ब्लॉक एंड इंडेंटेशन मैंने आपको क्लियर किया, अ पीस ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट दैट इज कॉल्ड ब्लॉक। देखो आपने ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 1 के अंदर है, ब्लॉक 2 है, देन ब्लॉक 3। सो स्पेस है, देखो इंडेंटेशन, ये स्पेस आ जाएगा। दिस इज इंडेंटेशन इज अ स्पेस गिवन फॉर रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम। देखो अगर मैंने एक ही लाइन में लिखा होता तो मुझे नहीं पता चलता कि इसके अंदर में क्या है। मतलब क्या है, मैंने ब्लॉक 1 बना इंडेंटेशन, उसके अंदर मैंने ब्लॉक 2 लिखा, इसका पार्ट आपने देखा होगा। अगर आपने नोट मेकिंग करते हैं, आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो नोट मेकिंग या इंडेक्स पेज बनाते हैं, तो उसमें आप लिखते हैं ना 1 देन 1.1 1.2, दिस इज जस्ट लाइक दिस। सो आपने लिखा ब्लॉक 1, ब्लॉक 1 के अंदर आ रहा है ब्लॉक 2, ब्लॉक 2 के अंदर ब्लॉक 3, तो जितना होगा हम उसको इंडेंटेशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ब्लॉक 2 एक लाइन में, देन ब्लॉक 1 एक लाइन में। सो आप इंडेक्स पेज को ध्यान रखेंगे तो आपको एक क्लियर हो जाएगा। क्यों करते हैं हम? ताकि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए कि क्या चीज आपका किसके अंडर क्या है, ठीक है। जैसे आप बायो में पढ़ रहे हैं तो फाइलम है, किंगडम है, फाइलम के अंदर फिर आपके सब फाइलम है, स्पीशीज है, जीनस है, इस तरह से आपके होते हैं। चैप्टर आप पढ़ते हैं, चैप्टर में आपका 1, आपका चैप्टर 1.1 में अलग है, 1.2 में क्या है, 1.3 क्या है, इस तरह से आपको फिर 2 चैप्टर का पार्ट आ गया, 2.1 2.2, दिस इज जस्ट लाइक दिस। सो ब्लॉक एंड इंडेंटेशन, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए, ये देखिए जो हमने पढ़ा उस पूरे में देखिए आप, एक प्रोग्राम का एग्जांपल ले रही हूँ मैं, जो हमने किया है वही एग्जांपल है। सो दिस प्रोग्राम शोज अ बेसिक स्ट्रक्चर, यू कैन कॉपी द कोड एंड एग्जीक्यूट इट। अब देखिए मैंने पहली जो लाइन ली है वो हैश टैग लगाई है, दिस इज अ सिंगल लाइन और सिंगल कमेंट्स। सेकंड मैंने आपको जो दिया है देखिए उसमें 1 2 3 लाइन है, और मैंने उसमें यूज किए सिंगल कोट्स, ठीक है, 3 टाइम्स। ऐसा नहीं कि 3 लाइन है तो मुझे 3 बार कोट्स यूज करने हैं, 4 लाइन है तो 4, नो, यू हैव टू यूज 3 टाइम्स, आइदर 10 लाइन का आप ले लीजिए टाइम। फिर मैंने लिखा a इक्वल टू 15, दैट इज असाइन 15 टू a। ये इन लाइन कमेंट हो गया क्योंकि मैंने उस लाइन के साथ ही लगा दिया हैश, ठीक है। उसके बाद मैंने b लिया है, स्टेटमेंट लिखी है int input given number, this is a statement। और a is equal to 15 also स्टेटमेंट है, ओके। देन मैंने यूज किया प्रिंट फंक्शन, दैट इज द फर्स्ट नंबर इज a, ठीक है। प्रिंट फंक्शन मैंने 3 बार यूज किया। पहला मैंने सिंपल प्रिंट यूज किया, द फर्स्ट नंबर इज a। सेकंड में मैंने यूज किया जब हम कंडीशन लगा रहे हैं ब्लॉक स्टेटमेंट में, इफ a ग्रेटर देन b, ठीक है। पाइथन केस सेंसिटिव देखो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ क्योंकि a कैपिटल लिया मैंने, स्मॉल b लिया, ठीक है। बट हमें या तो स्मॉल में लेना चाहिए, ठीक है, बेटर प्रोग्रामिंग के लिए। बट यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने बी, क्योंकि बिकॉज पाइथन इज केस सेंसिटिव रेदर देन माइस्क्यूएल, माइस्क्यूएल इज नॉट केस सेंसिटिव। टर्मिनेटिंग में देखो यहाँ कहीं सेमीकोलन नहीं लगा है, एंटर कैरेज रिटर्न जो है वो न्यू लाइन आपका, वो इंडिकेट करती है कि नेक्स्ट है आपकी लाइन, ठीक है। वो लाइन आपकी वहां पे एंड हो गई है। अगर मैंने कॉलन साइन लगाया देखिए दैट मीन्स ब्लॉक, ब्लॉक मतलब ये अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी मतलब मुझे नेक्स्ट आना है, और देखिए इंडेंटेशन आ रहा है, इफ के साथ नहीं लिखा मैंने, प्रिंट यहाँ पर आ रहा है, एल्स लगा के प्रिंट बी आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन, जो स्पेस आई हैव गिवन, ठीक है। तो स्पेस जो मैंने प्रोवाइड किया ये इंडिकेट करता है कि ये इंडेंटेशन है, और ये जो साइन इंडिकेट करता है ब्लॉक है। सो जो हमने भी पढ़ा है, आई होप यू अंडरस्टूड कमेंट्स, इनलाइन कमेंट, स्टेटमेंट, फंक्शन, ब्लॉक, इंडेंटेशन। कोशिश की है मैंने आपको समझाने की पूरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम। कहीं भी कोई डाउट हो आपको, यू जस्ट कमेंट मी, इफ यू लाइक इट देन प्रेस लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, गॉड ब्लेस यू।